अभी मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया। अब इलेक्ट्रिक बस अगर चलती है नॉन एसी, भारत सरकार ने 5,500 बसेस का टेंडर निकाला। मिश्रा जी थे तभी उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और अभी ये 5,500 बसेस में जो टेंडर आया, नॉन एसी बस का टेंडर आया 39 रुपीज पर किलोमीटर, और एसी बस का, इलेक्ट्रिक बस का टेंडर आया 41 रुपीज पर किलोमीटर। और डीजल की बस जो उत्तर प्रदेश में चल रही है उसकी कॉस्ट 100 रुपए पर किलोमीटर से कम नहीं है। मुंबई में बेस्ट की बस जो चलती है वो 115 रुपए पर किलोमीटर है। और अगर हम आज का टिकट रेट जो है डीजल बस का, अभी तो मुझे मालूम नहीं, पर ऐसा सुनते थे पहले कि टब पर भी लोग बैठते थे बस में, तो ये इलेक्ट्रिक बस अगर आपने लाई तो टिकट रेट 25% कम करके भी यूपी की पूरी जनता को एसी बस में भी आपने घुमाया, तो 1 रुपया सरकार का न डालते हुए लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल को आपने लाया, तो उत्तर प्रदेश का पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को भी कंफर्ट मिलेगा। अभी आप इथेनॉल तैयार करते हो, मैं तो 2004 से बोलता था। 11 तारीख को मेरे घर पर टोयोटा की गाड़ी है कैमरी, फ्लेक्स इंजन, वो लॉन्च हो रही है 100% बायो इथेनॉल पर, जो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आप तैयार करते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से पेट्रोल और डीजल को बिल्कुल समाप्त कर दो, बॉर्डर के बाहर निकाल दो, और इससे किसान भी समृद्ध बनेंगे। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, इथेनॉल तैयार करता हूँ, मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर है। अभी आपने परली जो है आपके यहाँ सहारनपुर और यहाँ होती है, जलाते हैं, जिसमें पंजाब हरियाणा की परली से हमारे दिल्ली में पोल्यूशन होता है। ये इंडियन ऑयल वालों ने, हम लोग पीछे लगे तो प्राच की टेक्नोलॉजी आई और 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल परली से तैयार होता है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है। हमारे देश में 50 लाख टन बिटुमिन होता है और 30 लाख टन बिटुमिन हम इंपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों की परली जो जलाते हैं, उससे अगर बिटुमिन तैयार होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें बिटुमिन इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। The most important thing for the Atmanirbhar Bharat is we have to reduce our import and increase our export. That is the way by which we can going to create more employment potential in the country, in the rural and agriculture area. We have 124 districts which are socially, economically, educationally backward, and we are calling them aspirant districts. And our duty is to create jobs and to create them opportunity into the backward area of the country, the agriculture, rural, tribal, the forest area, and where we can make this biofuel. I am really happy that our industry, our construction industry is doing excellent jobs. Sometime as a minister, many times I am getting lot of thanks from the people, but that is not only my credit. I always telling to the people that when A person works A square and B person works B square, the total work is A square plus B square. But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B bracket में square, उसका जवाब आता है A square plus B square plus twice AB. And that is the proven mathematics. So this is your credit. Because I am a minister, that's the reason people are giving me the credit. I am not an engineer. There is a misimpression about me that I am an engineer. Actually, in my matric, I was politically very active. As a student leader, I can't get admission for engineering college because my percentage was 49%, and minimum percentage required for engineering was 50%. And now we have 6 world record. But I received 2 deletes. One is for agriculture science, not for road construction. And today I received 1 delete from Dr. Babasaheb Ambedkar University, Aurangabad. But that is 3, my deletes are only for agriculture, not for road construction. But I got opportunity to construct express highways, flyovers, bridges and tunnels. It becomes my passion. And I always remembering the word of American President John Kennedy, that American roads are not good because America is rich.
But America is rich because American roads are good. The prosperity is coming from the road. And already I promised Yogi ji that before end of 24, we will make the infrastructure, the road infrastructure of the Uttar Pradesh equivalent to USA. It is only with your cooperation. We need to have more cooperation, coordination and communication between the stakeholders. We need transparent system, fast-track decision-making process, corruption-free system, quality, 101% commitment with the quality. We need to reduce the cost of construction and improve the quality of construction. We can make miracles. You have got the potential. But the problem is that the ownership is very important. Without ownership, you cannot do anything. The commitment for your cause, commitment for your mission is equally important. And I feel that that is the potential which you have. On the basis of that, in next few years, we have got a lot of good responsibility, because the dream of the Prime Minister is to make our economy number one in the world. Presently, our number is 5th. And our aim is to make Indian economy number one in the world. We have got the potential. For that reason, we need good infrastructure. Water, power, transport, communication, metros, everything, shipping, ports, inland waterways, e-highways, everything. And that is exactly the role of Vishwakarma, is your role. कभी कभी काम करने से भी बड़ी खुशी होती है, और जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये कॉन्फ्रेंस में जो नए इनोवेशंस है, रिसर्च है, उसको स्वीकार करो, पॉजिटिविटी रखो. कभी कभी हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता तो मैं बोलता हूँ नोटिस दो, फिर मैं बोलता इसको डांटो, फिर आया कभी मेरे पास आता तो मैं तो कभी कभी बहुत नाराज भी होता हूँ, गाली गलौज भी करता हूँ, बोलता ठोकूंगा तुमको, फिर काम करने लगाता हूँ. मैं जब मंत्री बना तो मेरे पास 485 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे. पूरा सेक्टर बंद पड़ा था. रोज रात को 10 बजे से रात को 12 बजे तक बैंकर्स, अधिकारी बैठ के हम निकाल के वे आउट निकालते थे. तो लोग पूछते थे कैसा हुआ? पॉजिटिविटी, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और आप ये ओनरशिप लेंगे तो पक्का होगा. मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ के रिसर्च और अच्छी बातों को लेकर आप जाइए और उसको इम्प्लीमेंट करिए. सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में मत रखिए. हमारे यहाँ बहुत रिसर्च होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन करती वो बस बंद करती, कोई सुने नहीं, कोई देखे नहीं, कोई पढ़े नहीं, बंद करो. उपयोग क्या है उसका? अगर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड रिसर्च जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है वो अगर आम इसके लिए नहीं आएगी तो उसका उपयोग क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये IRC इसके लिए बहुत उपयोगी होगी. बहुत कुछ बोलना है पर समय हुआ है, पर मैं आया हूँ तो यूपी के लिए मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड 2024 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश में करूँगा. तो आज मैं आते आते ही मैंने आज 8,000 करोड़ रुपए आपको देकर जा रहा हूँ. ये प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं. शाहाबाद बाईपास, हरदोई बाईपास 1212 करोड़ का, शाहजहाँपुर बाईपास से शाहाबाद बाईपास 35 किलोमीटर 950 करोड़ का, मुरादाबाद ठाकुरद्वारा काशीपुर 2007 करोड़ का, गाजीपुर बलिया 1708 करोड़ रुपए का. और मैं आज ही हमारे जो ROB की बात आदरणीय मंत्री जी ने की थी उसमें 13 ROB 1,000 करोड़ रुपए के मंजूर कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लिए. तो ये 7,000 करोड़ रुपए ये मैंने योगी जी कल ही नागपुर में ही फाइल पर ये तीनों सभी फाइल पर साइन किए. मैं दिल्ली नहीं था सप्ताह भर, पर यह शुरुआत है. ये केवल न्यूज रील है और सही फिल्म शुरू होना बाकी है. तो आप चिंता मत करिए. दूसरा भी एक मॉडल है कि पैसे की कोई कमी नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है. हमारे इतना पैसा मिलता है NHI में, लोग लाइन लगा के 3-3 बैंकों के चेयरमैन बोलते हैं हमारा पैसा लो, हमारा पैसा. हम बोलते तुम्हारा नहीं, इसका लेंगे. इतने पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है. पैसे देने वाले हैं, काम करने वालों की जरूरत है.
और अगर आप लोग करेंगे तो अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के सामने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, सोमनाथन करके फाइनेंस सेक्रेटरी जी का, और उनके प्रेजेंटेशन में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे लेवल पर पीपीपी, बीओटी, एनयूटी ये करना चाहिए। योगी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने मथुरा में एक बीओटी में पानी शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट किया है। वो मथुरा का 80 mld स्लज जो था उसको शुद्ध करके, शुद्ध पानी में तैयार करके वो इंडियन ऑयल रिफाइनरी को मथुरा को दिया जाता है, और वो प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया। 20 करोड़ रुपए इंडियन ऑयल रिफाइनरी उनको देती है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, और केवल 40% गवर्नमेंट ने पैसा दिया, 60% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सभी में बीओटी संभव है। और मुझे ये भाग्य मिला कि देश का पहला बीओटी प्रोजेक्ट शुरू करने का। तब मैं, अपोजिशन पार्टी ने मुझे पूछा था कि भाई तुम ये रोड अगर सब बीओटी पे कर रहे हो तो सरकार भी क्यों नहीं बीओटी पे देते हो। तब बड़ा क्रिटिसिज्म होता था। पर हमारे देश की ग्रोथ रेट को अगर बढ़ाना है तो पैसे की कमी है, और इसलिए पैसे का उपयोग अगर नियोजन ठीक प्रकार से होता है तो हम बहुत काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो बात योगी जी ने कही कि रोड इंजीनियरिंग की बात कही, आप जरूर हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करूँ। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था पुलिस प्रोटेक्शन में, रेड लाइट कार में, 4 जगह पैर टूटा है मेरा परिवार उसमें पड़ा था। मैंने ये भुगत चुका हूँ। मैं, जिस परिवार के लोग मर जाते हैं उनकी हालत क्या होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। हर साल देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और 18 से 24 वयोवर्ग के 60% लोग मरते हैं। यंग लड़की, इंजीनियर, डॉक्टर मर जाती है। ये अच्छा नहीं है। कोविड में नहीं मिले मरते, उससे भी ज्यादा मर रहे हैं। और मैं आपको माफ करो, हाथ जोड़कर बताता हूं कि आपका डीपीआर बनाने में बहुत गलतियां होती है। मैंने खुद मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उसमें एक प्राइवेट एनजीओ ने उसमें 70 गलतियां निकाली और मैंने उसको स्वीकार किया। और अभी एक एक हमारे रोड पर हम उसका जो रोड सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं तो हमारे काम में एक एक जगह 50-50, 60-60 बातें सुधारने की आवश्यकता पड़ रही है। मेरा आपको हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ये रोड इंजीनियरिंग, इसमें कोई 100% परफेक्शन लाइए। ये बात गलत है कि अगर हम कम रोड बनाएंगे, पर कभी भी परफेक्शन होना चाहिए। 101% परफेक्शन इज द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर एवरी फील्ड। मैं 8 दिन पहले मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कार को मैंने लॉन्च किया। मर्सिडीज का वर्ल्ड प्रेसिडेंट मेरे साथ था, मुझे रहा नहीं गया। मैंने जर्मन ऐसा देश देखा है कि जो 101% परफेक्शन, उनकी कोई भी मशीन उठाओ, कोई भी कार उठाओ, 101% परफेक्शन। और 12वीं के बाद वो एक व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करता है 6 साल। इतना परफेक्शन है। क्या हम नहीं कर सकते ये? क्या हमारे में एबिलिटी नहीं है? क्या हमारी आईआईटी, हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज कोई कम क्वालिटी की है? क्या हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कम है? कहीं ना कहीं आप तय करो कि क्वालिटी अच्छी बनाएंगे। मैं जब 95 में मंत्री था, मेरे शहर में मैंने कम से कम 350 किलोमीटर कंक्रीट रोड बनाए। आज 24 साल हुए योगी जी, एक गड्ढा नहीं है। मुंबई पुणे हाईवे पे गड्ढा नहीं है। अभी नई टेक्नोलॉजी आई, हर बार हम डामर के रोड बनाते हैं, हर 3 साल के बाद सब खुश, फिर से रोड दुरुस्ती करो, फिर रिपेयर करो, इसी में पैसा जाता है। हम केवल 6 इंच का सीमेंट कंक्रीट का व्हाइट टॉपिंग कर देंगे तो 25 साल तक मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें रिसर्च करें, अभी काफी प्रयोग हो रहे हैं। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। हर साल मेंटेनेंस का बजट बढ़ाने में क्या मतलब है? मेंटेनेंस 25 साल तक नहीं होना चाहिए। और इसलिए आने वाले समय में एक एक पैसे का उपयोग हम देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए कैसे करें। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सपना, हमारे देश को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स पर कैसे पहुंचाए, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में सुधार करके, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करके हम इस देश को, लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने संकल्प किया तो ये निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी बात की प्रेरणा लेकर
इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, इसको आपको यहाँ से मिलेगा। आप जरूर इस काम में यशस्वी होंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्होंने भव्य आयोजन करने में जो सहायता की है उसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ।